মাননীয় নরেন্দ্র মোদী, দামোদর দাস মোদী এখানে এসেছেন। আপনারা সবাই মিলে দুহাত তুলে একবার এই মোদীজিকে আশীর্বাদ করুন, যেন আরো অনেক অনেক বছর ভারতবর্ষের নেতৃত্বে তিনি থাকতে পারেন। এই ভারত মাতার বীর সন্তানকে আমরা এখানে বর্ধমানের বুকে বরণ করে নেব। আমাদের এখানে বরণ করে নেবেন আমাদের অভিজিৎ দা এবং কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। আপনারা বাটিক এবং উত্তরীয় দিয়ে এবং আমাদের মাননীয় দেশ নায়ক রাষ্ট্রনায়ক নরেন্দ্র মোদীজিকে বরণ করে নিন। এবং বর্ধমানবাসী আপনারা নরেন্দ্র মোদীজির জয়ধ্বনি দিন। নরেন্দ্র মোদীজি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্রজি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, নরেন্দ্র মোদীজি স্বাগতম, রাষ্ট্রপুরুষ নরেন্দ্র মোদীজি স্বাগতম, বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদীজি স্বাগতম, বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদীজি স্বাগতম। এখন এই মঞ্চকে সম্বোধিত করবেন আমাদের অভিভাবক সম এই বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ, আমাদের ঘরের মানুষ, মনের মানুষ, মাননীয় এস আলুওয়ালিয়াজি। সম্মানিত মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সবারই বিশ্বপ্রিয় নেতা মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি, আর এই হাজার হাজার মানুষের ভিড় যারা উপস্থিত হয়েছেন, পরিবর্তন করে নতুন বাংলা গড়ার কথা ভাবছেন, সেই নতুন সোনার বাংলা গড়ার আসল কাণ্ডারি আমাদের মাঝখানে আছেন। নরেন্দ্র মোদীজি এই দুর্গম পথ থেকে সারা ভারতবর্ষকে বার করেছেন। এবার পালা আছে পশ্চিম বাংলার। সেই পশ্চিম বাংলা যেখানে গর্ব করত লোক, এখানকার সংস্কারকে নিয়ে, এখানকার সংস্কৃতি আর সভ্যতাকে নিয়ে, সেই পশ্চিম বাংলা আজকে শুধু একটাই আর্তনাদ। বাড়ি বাড়িতে, গ্রামে গ্রামে একই আর্তনাদ, বাচ্চা ছেলেদের, বাচ্চা মেয়েদের, বাবা বাবা বাঁচাও, মাকে দস্যুরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে, বাবা বাবা বাঁচাও, দিদিকে দস্যুরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বাবাও বাঁচাতে পারছে না, গ্রামবাসীরাও বাঁচাতে পারছে না। কেন কি? এখানকার দস্যুরা গুন্ডা বাহিনী করে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ করছে। সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পাইয়ে একটা নতুন বাংলা, সোনার বাংলা, উন্নত বাংলা, গর্বিত বাংলা, সমৃদ্ধ বাংলার তৈরি করার জন্যে আমাদের যে দেশের সবচেয়ে বড় কাণ্ডারি আমাদের হারদিল আজিজ, আমাদের মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের মাঝখানে আছেন। আমি একটা স্লোগান দিচ্ছি, আমরা ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করে একটা স্লোগান দিচ্ছি, আপনারা তার উত্তর দেবেন। আমি বলবো এশিয়ার মুক্তি সূর্য নরেন্দ্র মোদী যুগ যুগ জিও, আপনারা যুগ যুগ জিও বলে তার স্লোগানের উত্তরটা দেবেন। এশিয়ার মুক্তি সূর্য, এশিয়ার মুক্তি সূর্য নরেন্দ্র মোদী যুগ যুগ জিও, এশিয়ার মুক্তি সূর্য নরেন্দ্র মোদী যুগ যুগ জিও। এশিয়ার মুক্তি সূর্য নরেন্দ্র মোদী যুগ যুগ জিও। ওনাকে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করুন যাতে উনি দীর্ঘায়ু হন, নিরোগী হন, আর এই দুর্গম পথটাকে জয় করতে পারেন। এশিয়ার মুক্তি সূর্য নরেন্দ্র মোদী যুগ যুগ জিও। ধন্যবাদ, নমস্কার। এখন আমাদের মা কালীর মেমেন্টো ওনার হাতে তুলে দেবেন মাননীয় সৌমিত্র খাঁ মহাশয়। এবং আমাদের তিন এমপি মহাশয় একসঙ্গে ওনার হাতে মেমেন্টো তুলে দেবেন। ভারত মাতা
সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এই রাষ্ট্রপুরুষ, যে রাষ্ট্রপুরুষের হাত ধরে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী দেশ হয়েছে এই ভারত, আজ ভারতবর্ষের কথা মাননীয় এই রাষ্ট্রপুরুষ নরেন্দ্র মোদীজির কথা শুনে গোটা পৃথিবী আজকে ভারতবর্ষের দেখানো পথে চলছেন। উনি আপনাদের সম্বোধন করতে যাচ্ছেন, মোদি 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 মোদি। नमस्कार। एक 108 महादेवेर এই ভূমিকে জানাই আমার প্রণাম। হর হর মহাদেব। देवी मां सर्वमंगला जी को मेरा प्रणाम। इस स्थान को भगवान महावीर का भी आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान महावीर ने और उनका बालकाल में उनका नाम वर्धमान ही था। यहां के आस्तिक ग्राम में उन्होंने कुछ समय भी गुजारा था। रास बिहारी बोस और बटुकेश्वर दत्त जैसे महान सपूतों को जन्म देने वाली इस पवित्र मिट्टी को, इस वीर भूमि को मैं आज शत शत नमन करता हूं। साथियों, वर्धमान की दो चीजें बहुत मशहूर हैं। एक तो चावल और दूसरा मिहिदाना। आपकी बोली, आपका व्यवहार, यहां का खान पान, हर चीज में भरपूर मिठास है ना? है ना? हर चीज में मिठास है ना? जरा बताइए ना, है ना? है कि नहीं? है ना? अच्छा, तो फिर मुझे बताइए, ये दीदी को वर्धमान का मिहिदाना पसंद नहीं है क्या? मैं हैरान हूं, इतनी कड़वाहट ये दीदी कहां से लाती है? साथियों, दीदी की कड़वाहट, उनका क्रोध, उनका गुस्सा, उनकी बौखलाहट दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।
बढ़ रही है ना? जानते हैं क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि बंगाल में हुए आधे चुनावों में, अभी तो 4 राउंड हुए हैं, 4 होने बाकी हैं। आधे चुनाव में आपने टीएमसी को साफ कर दिया। यानी आधे चुनाव में ही टीएमसी पूरी साफ। 4 चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे, इतने चौके छक्के मारे कि बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। अब आप बताइए, ये दीदी आपसे गुस्सा होगी या नहीं होगी? एक तो नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया। यानी बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दूसरा, बंगाल के लोगों ने दीदी का बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया। बंगाल की जो जनता है बहुत समझदार है। यहां के लोग बहुत ही दूरदृष्टा हैं। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो को सौंपेगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी जनता ने समय रहते समझ लिया और इसलिए दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। और तीसरा, दीदी की पूरी टीम को ही बंगाल के लोगों ने मैदान से बाहर जाने का कह दिया है। अब दीदी बंगाल के लोगों से जरा गुस्सा तो होगी ही। भाई और बहनों, दीदी को ये भी मालूम है कि एक बार यहां से कांग्रेस गई, कभी वापस नहीं आई। वाम वाले गए, लेफ्ट वाले गए, वापस नहीं आए। दीदी आप भी एक बार गई, कभी वापस नहीं। भाई और बहनों, दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती है कि टीएमसी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती हैं कि बंगाल के लोगों से उनकी नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। अब दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे हैं। एससी समुदाय को
अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे हैं, भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। अभी 14 अप्रैल को ही बाबा साहब की जन्म जयंती है। जन्म जयंती से पहले दीदी ने, टीएमसी ने बाबा साहब आंबेडकर का इतना बड़ा अपमान किया है। कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल की धरती पर ये कहा जाएगा, बंगाल की सीएम का कोई करीबी इस तरह की भद्दी बातें कर सकता है, इसका अंदाजा न देश को था न बंगाल को। ये कल्पना से भी परे है कि कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, दुखद है, ये सच्चाई है। और साथियों, दीदी तो खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बोलती है ना। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई और बहनों के खिलाफ ऐसा घृणित बयान बिना दीदी की मर्जी के कोई नहीं दे सकता। आप मुझे बताइए, क्या दीदी की मर्जी के बिना टीएमसी का कोई भी नेता ऐसा बयान दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? और देखिए, इतना बड़ा गंभीर बयान आ गया, हमारे दलित समाज को, अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी तक कह दिया। लेकिन अभी तक दीदी ने उसका इनकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी। इतना ही नहीं, ये जितने लोग कभी न कभी उनके साथ रहते हैं, हिंदुस्तान की कोई भी दल जो कभी दीदी के पक्ष में खड़ा हो जाता है, वे भी कांग्रेस समेत कोई टीएमसी के दलितों के अपमान करने वाले इस वाक्य के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले हैं। दीदी दलितों का अपमान करके, अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान करके, शेड्यूल कास्ट के लोगों का अपमान करके आपने अच्छा नहीं किया है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे भाइयों बहनों, वो राजा राम मोहन राय जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ पूरे देश को झकझोरा, इस कुरीति को मिटाने के लिए देश को दिशा दिखाई, उनके बंगाल में दीदी ने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। वो श्री श्री हरिचंद ठाकुर जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ सामाजिक आंदोलन शुरू किया, दलितों की बराबरी के लिए आवाज उठाई, उनके बंगाल में दीदी ने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। वो श्री रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने कहा कि हर जीव में शिव है, जो हर जीव में परमात्मा देखते थे, उनके बंगाल में दीदी ने
दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बंगाल में, रानी रासमणी जी के बंगाल में, मतीलाल सील जी के बंगाल में आपने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। दीदी, दलितों का अपमान करके आपने सबसे बड़ी भूल कर दी है। बंगाल के लोग ये बात हमेशा याद रखेंगे। बंगाल का कोई बच्चा इस बात को भूलेगा नहीं। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हार होती देख ये क्या हो गया दीदी आपको? क्या हो गया आपके करीबियों को? साथियों, दीदी के करीबी अब कहने लगे हैं कि बीजेपी का वोट देने वालों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। सुना है ना आपने? उनके एक मंत्री बोल रहे हैं, जो बीजेपी को वोट देगा उठाकर बाहर फेंक देंगे। क्या आपको ये भाषा मंजूर है? क्या ये बातें मंजूर है? क्या ये अहंकार मंजूर है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या हालत तो ये हो गई है कि दीदी अब केंद्रीय वाहिनी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, आपको गुस्सा करना है तो मैं हूं ना, मोदी पे करिए। आपको गाली देनी है, मोदी को गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए। अरे चौसरा भर भर के गाली दीजिए। लेकिन दीदी सुन लीजिए, ओ दीदी, बंगाल की गरिमा, बंगाल की गौरवमयी पहचान का अपमान मत करिए। आपका यह अहंकार अब बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके तोलाबाजों, आपके सिंडिकेट, आपके कटमनी सिस्टम को अब बंगाल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए बंगाल आज सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ है। बंगाल को नहीं चाहिए दीदी का कुशासन, नहीं चाहिए। बंगाल को चाहिए आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन। बांग्ला चाइना तृणमूलेर दुशासन, बांग्ला चाइना दीदी भाईपोर हिंसार खेला। बांग्ला चाय आशोल परिवर्तन, बांग्ला चाय विकास, बांग्ला चाय शिक्षा, शिल्पो, কর্মসংস্থান, বাংলা চায় নারী সুরক্ষা, বাংলা চায় কৃষক সম্মান, বাংলা চায় ভয় মুক্ত পরিবেশ, বাংলা চায় বিকাশ, বাংলা চায়
বিশ্বাস बांग्ला चाय बीजेपी सरकार, बांग्ला सरकार बीजेपी सरकार। भाई और बहनों, दीदी ने 10 साल तक मां, माटी, मानुष के नाम पर बंगाल पर राज किया है। लेकिन इन दिनों सभा में मां, माटी, मानुष नहीं, मोदी 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 करती रहती है। न मां, न माटी, न मानुष, सिर्फ मोदी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपके आशीर्वाद, इतनी बड़ी तादाद में आई हुई माताओं बहनों के आशीर्वाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं आपको बहुत बहुत वंदन करता हूं, बहुत वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इन 10 वर्षों में बंगाल के लोगों की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही है, उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए। ये पीड़ा है बंगाल में दीदी का कुशासन। दीदी ने बंगाल में गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला किया है। बंगाल में जिसका जो काम था, वो अपना काम छोड़कर कुछ और ही कर रहा है। सरकार का काम लोगों की भलाई करना है, लेकिन बंगाल में दीदी और उनके करीबियों ने गरीब तक पहुंचने वाले हर लाभ को लूट लिया। प्रशासन का काम है कल्याण की योजनाओं को तेजी से लागू करना, लेकिन बंगाल में दीदी ने प्रशासन को विकास कार्यों में रोड़े अटकाने के काम में लगा दिया। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था का राज बनाए रखना, लेकिन दीदी ने पुलिस को पार्टी के काम में लगा दिया, तोलाबाजों, सिंडिकेट की सेवा में लगा दिया। बंगाल के गरीबों, बंगाल के मध्यम वर्ग, यहां के नौजवानों, यहां की महिलाओं, यहां के बुजुर्गों को, यहां के उद्यमियों को, व्यापारियों को, कारोबारियों को ममता दीदी ने अपने कार्यकर्ताओं के रहम पर छोड़ दिया। जन्मदिन मनाना है तो टीएमसी से पूछो, घर बनाना है तो टीएमसी को कटमनी दो, राशन लेना है तो टीएमसी को कटमनी दो, कहीं अपना सामान ले जाना है, अपना सामान लाना है तो टीएमसी को कटमनी दो, किसी को अपना सामान बेचना है तो टीएमसी को कटमनी दो। बंगाल की जनता से लूटकर दीदी के करीबियों ने बड़े बड़े घर बनवा लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली। दीदी, ओ दीदी, बंगाल के लोगों को अब लूटने नहीं दिया जाएगा। बंगाल की बीजेपी सरकार आशोल परिवर्तन लेकर आएगी। योजनाओं का जो पैसा सरकार की तिजोरी से निकलता है, वह पूरा का पूरा लोगों तक पहुंचेगा। दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा, कोलकाता से 1 रुपया निकलेगा, तो उस रुपये के 100 पैसे लोगों के पास पहुंचेंगे। जन कल्याण की हर योजना को बंगाल में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
पुलिस सिर्फ अपना काम करेगी और प्रशासन सिर्फ अपना काम करेगी। आपके जीवन पर तोलाबाज और सिंडिकेट वालों ने जो दबाव डाला है, बीजेपी सरकार आते ही वो हट जाएगा। केंद्र की बीजेपी सरकार, बंगाल की बीजेपी सरकार डबल इंजन की शक्ति के साथ बंगाल के विकास के लिए डबल मेहनत करेगी। बंगाल का भला चाहने वाले हर किसी को हम साथ लेंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे। हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। जिस बंगाल की बीजेपी के जन्म में बहुत बड़ी भूमिका है, उस बंगाल की जितनी सेवा बीजेपी करे उतना कम होगी। आपकी एक एक आवश्यकता, आपकी एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। नीतियां बनाई जाएगी, उन्हें तेजी से लागू किया जाएगा। साथियों, 10 साल तक दीदी की दुर्नीति रही है, विभोग तो करो, राज करो, यानी बांटो और राज करो। बीजेपी का मंत्र है जुक तो करो, सेवा करो, यानी जोड़ो और सेवा करो की भावना से काम करेगी। बीजेपी का मंत्र है सकलेर साथ, सकलेर विकास, सकलेर विस्तार, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। टीएमसी का मार्ग रहा है मां को सताओ, माटी को लूटो, मानुष का रक्त बहाओ। भाई और बहनों, कुछ बिहार में 2 दिन पहले जिन लोगों की मृत्यु हुई वो भी किसी मां के ही बेटे थे, लेकिन ममता दीदी की नीतियों ने कितनी ही मांओं से उनके बेटे छीन लिए हैं। दीदी के मां माटी मानुष की यही असलियत है। साथियों, इसी चुनाव के दौरान हमने शोमा मजमूदार जी को भी खोया है। दीदी के गुंडों ने बुजुर्ग शोमा मजूमदार जी को इतनी बेरहमी से पीटा था कि आज भी वो तस्वीर आंखों से जाती नहीं है। आप किसी मां के सम्मान की बात, दीदी किस मां के सम्मान की बात करती थी? साथियों, आपने देखा पढ़ा होगा कि बिहार के पूर्णिया जिले के गांव में कल एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। मां की मृत्यु अपने बेटे की हत्या के सदमे से हुई थी। कौन था वीर जवान? वो वीर जवान 2 दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहां बंगाल में पीट पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। मां ने जब अपने वीर जवान बेटे का शव देखा तो मां ने भी दम तोड़ दिया। क्या उस पुलिस अफसर की मां दीदी, क्या वो आपके लिए मां नहीं थी? आप इतनी कठोर है, इतनी निर्मम है, इसका अंदाजा बंगाल की किसी मां को कभी नहीं था। साथियों, दीदी की दुर्नीति को यहां पूर्वा वर्धमान के कृषकों ने तो
बहुत ज्यादा भुगता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब आंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं के प्रयासों से देश को दामोदर घाटी जैसी जल विद्युत परियोजना मिली थी। वो चाहते थे कि वर्धमान के खेत सोना उगले, यहां जगह जगह शिल्प लगे, लेकिन उनका ये सपना आज तक सच नहीं हो पाया है। दान का कटोरा कहा जाने वाला हमारा वर्धमान, यहां के लोग आज मूल सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आजादी के शुरुआती वर्षों में जो नहरें बनी, उसकी सही देखरेख तक यहां की सरकार नहीं कर पाई। नई नहरें बनाना कभी दीदी की प्राथमिकताओं में ही रहा नहीं। धान पैदा करने वाले किसान हो या आलू कृषक, यहां हर कोई बेहाल है। ना सिंचाई की सही सुविधा है, न पर्याप्त मंडियां है, न स्टोरेज की सुविधा है और न उपज का उचित दाम मिल पा रहा है। आजकल आलू का सीजन है तो स्थिति और भी बिगड़ रही है। बंगाल में कृषक खेतों में परेशान है। सिर्फ और सिर्फ दीदी का सिंडिकेट यहां खेती से कमा रहा है, कोल्ड स्टोरेज पर एकाधिकार से कमा रहा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये सभी हालत, मैं आपको वादा करता हूं भाइयों बहनों, ये परिस्थिति सुधारी जाएगी। गरीब किसान को भी कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिले, फूड पार्क की सुविधा मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां के मेरे किसान भाइयों बहनों को फसल बीमा योजना का ज्यादा लाभ मिलेगा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां सिंचाई परियोजनाओं में और तेजी लाई जाएगी। नहरों की क्षमता बढ़ाने का काम तेज किया जाएगा। किसानों को सोलर पंप, सौर पंप देने वाली कुसुम योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, ऐसी हर स्कीम बंगाल की डबल इंजन वाली सरकार 2 गुनी शक्ति से लागू करेगी। साथियों, किसानों से दीदी की दुश्मनी का सबसे बड़ा उदाहरण है पीएम किसान सम्मान निधि पर बंगाल में रोक। दीदी, ओ दीदी, जरा ये तो बताओ, आपको किसानों से क्या दुश्मनी है? चलो मोदी से दुश्मनी मान ली, किसानों से क्या दुश्मनी है? अरे बंगाल के हर किसान के बैंक खाते में अगर मोदी सरकार सीधे पैसे जमा कराना चाहती है तो आपको तकलीफ क्या है? आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आपके कितने ही छोटे बड़े काम भाइयों बहनों कोरोना काल में इस पैसे से हो जाते हैं। अब बंगाल में 2 मई दीदी गई, जैसे ही दीदी की सरकार जाएगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को तुरंत लागू किया जाएगा। पहली ही कैबिनेट में बंगाल की बीजेपी सरकार इस पर फैसला लेगी और दीदी ने बंगाल के हर किसान का जो 18,000 टका रोका है, कितना? 18,000 कितना? जरा जोर से बताइए, कितना रोका है?
18,000 टका जो किसान के खाते में जाना चाहिए था, मैं आपको वादा करता हूं किसान के खाते में 18,000 टका जमा कर दिया जाएगा। साथियों, दीदी की दुर्नीति ने सिर्फ कृषक के हितों से ही नहीं बल्कि यहां के हर परिवार की सुविधा और स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया है। देश आज बिजली के उत्पादन में सरप्लस है, लेकिन यहां बिजली की नियमित सप्लाई तक नहीं मिल पा रही है। यहां के बच्चों की, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की इस परेशानी की दीदी को परवाह ही नहीं है। यहां के हमारे गरीब भाई बहन आर्सेनिक वाला जहरीला पानी पीने को मजबूर है, लेकिन इससे भी दीदी को कोई मतलब नहीं है। 10 साल दीदी ने गरीबी के लिए जो दिखावा किया है वो अब देश के सामने आ रहा है। मैं वर्धमान की इतनी बड़ी में तादाद में आई हुई बहनों को, बेटियों को और पूरे इस क्षेत्र के बहनों बेटियों से एक बात कहना चाहता हूं। आपके इस सेवक ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर घर पाइप से शुद्ध जल पहुंचे, इसके लिए बहुत बड़ी योजना शुरू की है। बंगाल की सरकार को भी सैकड़ों करोड़ रुपए इसके लिए हमने भेजे हैं, लेकिन दीदी की सरकार ने उसका बहुत बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया। आप मुझे बताइए, आपके बच्चे आर्सेनिक युक्त पानी पीते रहे, जीवन भर के लिए बीमार होते रहे, क्या दीदी ने आपका ये दर्द समझा कभी? आपका ये दर्द, आपकी ये तकलीफ बीजेपी सरकार दूर करेगी। आपके घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा और इतना ही नहीं, आपके ही गांव में वहीं की बहू बेटियों को उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये पूरा पानी का कारोबार उस गांव की 5-7 जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको दे दिया जाएगा और वो कभी गांव में पानी की किल्लत नहीं होने देगी। भाइयों बहनों, साथियों, दीदी पर आपने इतना भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपका वो भरोसा तोड़ दिया। दीदी ने आपके साथ विश्वासघात किया है। साथियों, यहां बहन हमारी कलिता मां जी बैठी है। ये हमारी बहन कलिता मां जी, ये उम्मीदवार भले ही बीजेपी की है, लेकिन ये बंगाल की बहन बेटियों की आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। पश्चिम बंगाल की बेटियां, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी मत मजहब से आती हो, वो अपने सपने पूरा करना चाहती है। इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, शिल्प चाहिए। ये सब कुछ बीजेपी की संवेदनशील सरकार ही दे सकती है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार, डबल स्पीड के साथ डबल विकास करने वाली सरकार है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये फ्रेट कॉरिडोर जब पूरा हो जाएगा तो इस पूरे क्षेत्र में शिल्प के, चाकरी के, बिजनेस के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसका एक बहुत बड़ा सेक्शन पूरा हो चुका है और डबल इंजन सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल वाले हिस्से को भी तेज गति से पूरा किया जाएगा। यहां हर तरह से कनेक्टिविटी बढ़े, गांव-गांव तक अच्छी सड़कें पहुंचे,
इसके लिए बंगाल की बीजेपी सरकार दिन रात काम करेगी। यही नहीं, इस क्षेत्र में नदियों के ऊपर कनेक्टिविटी की जो समस्या है उसको लेकर भी पूरी गंभीरता से काम किया जाएगा। यहां टीएमसी नेताओं और प्रशासन की मिली भगत की वजह से नदियों के पास बालू माफिया सक्रिय है। बीजेपी सरकार इस अवैध बालू खनन पर रोक लगाएगी, इस क्षेत्र को बालू माफियाओं के कहर से बचाएगी। साथियों, बंगाल के विकास के लिए भयमुक्त होकर आप सभी को कमल छाप पर बटन दबाना है। भाइयों बहनों, बांग्ला नववर्ष में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाए, ये हम सबको सुनिश्चित करना है। भाइयों बहनों, कल से नवरात्रि भी शुरू होने जा रही है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मां काली, मां दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी की हर कामना पूरी होगी। इतनी बड़ी संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलना है। बोलेंगे? भारत माता की, 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 भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। এই মঞ্চে সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা সাবধানে বাড়ি ফিরে যান। আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানেই শেষ। এখানে মঞ্চ, মাইক, ভলান্টিয়ার এবং সমস্ত কার্যকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করা হলো।
বোনেদের আর ভাইয়েদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি। পশ্চিম বাংলার দুর্গা পূজা ভারতের এই পূর্ণতাকে এক নতুন ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে, নতুন রঙে রাঙিয়েছে, নতুন শৃঙ্গার দিয়েছে। এটা বাংলার জাগ্রত চেতনা